Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, as you know, yesterday we have taken revision of our chapter 7. Uh, I think our chapter was Samudragupta. So today we will start our next chapter, chapter number 8, Rikki Tikki. As per schedule, we have decided to not take revision, but as we have got so many time for our half yearly syllabus, now we have enough time for our half yearly syllabus, so we will take revision after one chapter. That's why we have taken decided to take revision of chapter 7. So as you know, on Saturday I have taken your revision. So today start our chapter 8, Rikki Tikki. First thing is that as you can see here is a snake, and what is this? This is mongoose. Everybody know about the mongoose. Mongoose means nevla, and snake, everybody know about the state. So after seeing this picture, as you are able to see the cover picture, so after seeing this picture, you all have listened some story related to the snake and mongoose. Mongoose in Hindi, nevla. Okay, so do you have any idea of its story? Yes, I know you have some idea of the story. So let us start our chapter. Rikki Tikki. Before starting chapter, first you tell me which of the given animals is odd and why. Rat, mongoose, snake. So what is odd here? Here is rat. Rat is odd here. Mongoose and snake, they lived in a jungle, they lived in bushes, but rat lives in our house. Rat जो होते हैं वो अपने घर में रहते हैं. Rat lives in our house. That's why it is odd from that. Odd means जो दो से different हो, that is different from the other two. So mongoose and snake are in same, but rat is different. Let us start our chapter. Everybody listen very carefully and go through the page number 52. Rikki Tikki was a mongoose. Here is a mongoose whose name was Rikki Tikki. He had a cat-like body and a weasel-like head. जो mongoose होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो कैट की तरह बनी होती है. Have you ever seen the mongoose? If you have seen, then write in comment box. Somebody have seen, but I have never seen mongoose, but I know some students have seen the mongoose. So he had a cat-like body. उसकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? Like a cat and a whistle-like head. और जो उसका हेड होता है वो एक विसल की तरह होता है. ठीक है, स्मॉल कार्निवोर बोलते हैं इनको. His eyes and the end of the restless nose were pink. जो उसकी आइज़ होती हैं वो भी पिंक कलर में होती हैं, और जो उसकी नोज़ होती है, मतलब एंड तक की ये सारी चीज़ें मतलब जो होती है उसकी पिंक कलर में होती हैं. ही कुड स्क्रैच हिमसेल्फ, और वो अपने आप को स्क्रैच कर सकता है एनी वेयर ही प्लीज्ड विद एनी लेग. वो मतलब अपनी पूरी बॉडी में जहाँ चाहे वहाँ स्क्रैच, मतलब खुजलाना होता है, स्क्रैच करना. तो अपनी बॉडी में कहीं भी स्क्रैच कर सकता है, खुद से कहीं भी कर सकता है. विद एनी लेग, अपने किसी भी पैर से कर सकता है. फ्रंट में सामने के पैर हो, हैंड या पीछे के पैर हो, पीछे के पैर, आगे के पैर, किसी भी पैर से अपने आप को स्क्रैच कर सकता है. दैट मीन्स इट इज़ ईजी टू मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ mongoose. ठीक है. सो अ mongoose इज़ एबल टू मूव इट्स बॉडी पार्ट इन एनी डायरेक्शन. किसी भी दिशा में, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, आगे पीछे ऊपर नीचे, वो कहीं भी अपनी बॉडी को पूरी तरह से मूव कर सकता है ईजिली. फ्रंट और हिंड विच एवर ही चूज़ टू यूज़, एंड चॉइस उसकी है. दैट मीन्स बॉडी इज़ मूवेबल एंड ही moves his body easily, and he scratch in his body wherever he want. His war cry as he skulted through the long grass was Rikki Tikki tick 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 tick. That means his war cry, और मतलब जो उसे अटैक करना होता है किसी के ऊपर, सो वो क्या करता है, मतलब वही झाड़ी में है, ग्रास में है, उसे पता चल जाता है और अपना वो शिकार वहाँ से जाकर कर सकता है. His war cry as he skulted through the long grass was Rikki Tikki tick 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 tick. उसके जो
मतलब जिन पे वो वार करता है वो ऐसे चिल्लाते हैं टू रन विद क्विक स्टेप्स, और उसको मतलब देखकर भाग जाते हैं, मतलब वार से पहले ही वो भाग जाते हैं। तो वो आसानी एक्चुअली ये बहुत एक्टिव होते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन क्या होता है, नथिंग फ्राइटेंड हिम, और उसे कोई भी चीज़ जो है डराती नहीं है। एक्चुअली इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू फ्राइटन अ mongoose बिकॉज ही इज़ फिल्ड विद क्यूरोसिटी। एक्चुअली क्या होता है, एक mongoose को डराना, लोग उस मतलब वो जहाँ मतलब टिक 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 करता है तो लोग उसको देख करके भाग जाते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो क्या होता है, वो इतना एक्टिव होता है कि ये बहुत हार्ड होता है उसको डराना। इट इज़ वेरी हार्ड टू फ्राइटन हिम, उसको कोई डरा नहीं सकता है। जो mongoose होता है वो किसी से नहीं डरता है, बिकॉज ही इज़ फिल्ड विद क्यूरियोसिटी। व्हाट इज़ द रीज़न दैट ही नेवर फ्राइटन टू एनीवन, बिकॉज ही इज़ वेरी क्यूरियस, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस होता है, वो किसी से नहीं डरता, उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। एंड ऑल्सो ही इज़ वेरी एक्टिव, वो बहुत एक्टिव भी होता है। द मोटो ऑफ ऑल द mongoose इज़ रन एंड फाइंड आउट, और जो इनका मोटो होता है बस वो ये होता है दौड़ना और भाग के किसी चीज़ को पा लेना, चीज़ों को ढूंढना, उनको पकड़ना, इनका यही मोटो होता है। एंड रिकी टिक्की वॉज अ ट्रू mongoose, और एक्चुअली जो रिकी टिक्की है वो एक बहुत सच्चा mongoose है, ठीक है। इज़ अ गुड द mongoose who is described here is very true, is very good. Ricky Tikki had just started living with a family, और रिकी टिक्की ने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया था फैमिली के साथ रहना, एज दियर पेट, उनके पालतू की तरह वो रहता था फैमिली में। रिकी टिक्की हैड जस्ट स्टार्टेड लिविंग विद द फैमिली, एक फैमिली के साथ उसने रहना स्टार्ट किया था एक पेट की तरह। एंड लव प्लेइंग इन देयर गार्डन, और उनके गार्डन में उसे खेलना बहुत पसंद था, ठीक है। किसी फैमिली ने उसे एज अ पेट जो है पाला था, और वो उसे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ खेलना, उनके साथ रहना। व्हेन ही वॉज इन द गार्डन ही हियर्ड sorrowful वॉइस। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट क्या होता है, वन डे व्हेन ही वॉज इन द गार्डन, जब वो गार्डन में होता है, ही हियर्ड sorrowful वॉइसेस इन अ बुश, तो उसे आवाज़ें आती हैं बुश से, झाड़ियों से। sorrowful यानी कि जो मतलब दुखी आवाज़ें आती हैं, रोने की, कि कोई विलाप कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई बहुत परेशान है, ऐसी आवाज़ें आती हैं। इट वॉज दर्जी द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ। एक्चुअली एवरीबडी नोज अबाउट द टेलर बर्ड, तो वो किसकी आवाज़ होती है, दैट वॉज द साउंड ऑफ द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ। टेलर बर्ड और उसकी वाइफ की वो आवाज़ होती है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, दर्जी चिड़िया होती है ना, टेलर बर्ड वो होती है जो जिसका जो है घोंसला बना होता है, वो एज अ टेलर, जैसे टेलर बनाते हैं उसको सिल के बनाती है। सो दर्जी टेलर बर्ड होती है, तो उसका घोंसला उसमें बना होता है, तो वो वही वहाँ पे विलाप कर रही होती, रो रही होती। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड रिकी टिक्की। अब रिकी टिक्की वॉज mongoose आस्क्ड टू देम व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू अपसेट, पूछता है क्या मैटर है, आप क्यों परेशान हैं। वी आर वेरी माइजरेबल सेड दर्जी, तो दर्जी जो होती है चिड़िया, वो कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? आवर बेबी फेल आउट ऑफ आवर नेस्ट एंड नाग एट हिम, नाग मीन्स सांप, स्नेक। तो कहती है कि जो है मेरा बेबी जो था ना वो गिर गया था नेस्ट से, और ये सांप है, जो सांप ने उसको खा लिया, जो नाग है उसने खा लिया। दैट इज़ वेरी सैड सेड रिकी टिक्की। रिकी टिक्की कहता है ये तो बहुत दुख की बात है। बट आई एम न्यू हेयर, लेकिन मैं यहाँ पे नया हूँ। हु इज़ नाग, नाग कौन है। सडनली फ्रॉम द थिक ग्रास, अचानक क्या होता है, उस मोटी सी घास से, एट द फुट ऑफ द बुश के फुट पे देयर केम अ लो हिश करने की आवाज़ आती है। सडनली फ्रॉम द थिक ग्रास, मोटी मोटी घास लगी होती है और वहाँ से एक आवाज़ आती है, घास से पैरों के चलने की आवाज़ आती है झाड़ियों से। एंड देयर केम अ लो हिश, और वहाँ पे क्या, हिश की आवाज़ होती है। फिर क्या होता है, व्हाट हैपेंड, देन आउट ऑफ द ग्रास रोज अप द स्प्रेड हुड ऑफ नाग, और वहाँ से ग्रास से क्या निकला हुआ दिखता है, निकलता है, कौन निकलता है, एक नाग निकलता है। द बिग ब्लैक कोबरा, और वो कौन होता है, बिग बड़ा सा एक ब्लैक कलर का कोबरा होता है। ही वॉज 5 फीट लॉन्ग फ्रॉम टंग टू टेल, और वो टंग से लेकर के टेल तक की कितने मीटर लॉन्ग होता है, ही वॉज 5 फीट
लॉन्ग होता है। ही लुक्ड एट रिकी टिक्की, वो रिकी टिक्की की तरफ देखता है विद विग्ड स्नेक्स आइज, अपनी दुष्ट सांप वाली आँखों से, दुष्टता के साथ बहुत ही घूर के रिकी टिक्की को देखता है। आई एम नाग, लुक एट एंड बी अफ्रेड, वो कहता है मैं नाग हूँ, स्नेक दैट वॉज 5 feet लॉन्ग said that I am Nag, look at and be afraid, मुझे देखो और मुझसे डरो। रिकी टिकी वॉज अफ्रेड फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए तो रिकी टिकी डर जाता है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मोंग्यूज टू स्टे फ्राइटन फॉर अ लॉन्ग, लेकिन एक मोंग्यूज को एक लंबे समय के लिए डरा पाना जो वो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, टफ काम होता है। ही हैड नेवर मेट अ लाइव कोबरा बिफोर, वो इससे पहले कभी जो है कोबरा से नहीं मिला होता, लाइव सामने से नहीं मिला होता है। बट ही न्यू दैट अ ग्रोन मोंग्यूज बिजनेस इन लाइफ वॉज टू फाइट एंड ईट स्नेक्स, लेकिन जो वो होता है ही हैड नेवर मेट अ लाइव कोबरा बिफोर, लेकिन वो जो ये स्नेक था वो ये जानता था कि एक जो मोंग्यूज होता है उसका क्या होता है, लड़ना होता है। बट ही न्यू, वो जानता था दैट अ ग्रोन मोंग्यूज बिजनेस इन लाइफ, कि एक जो बढ़ते हुए मोंग्यूज का काम क्या होता है, लड़ना, फाइटिंग करना और सांप को खा जाना। नाग न्यू दैट टू, और नाग भी ऐसा जानता था। मतलब ये सब चीज़ें कौन सोच रहा था, मतलब वो मोंग्यूज अपने आप से कहता है कि मतलब इसने इससे पहले हालांकि कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका काम क्या होता है, यही सब होता है, उनसे फाइट करना और उन्हें खा जाना, तो वो मतलब ऐसा बोलता है। तो नाग जो होता है वो कहते हैं नाग न्यू दैट टू, नाग भी ये बात जानता था कि ऐसा होता है और सांप को ये खा जाते हैं। एंड इन हिज हार्ट ही वॉज अफ्रेड, और अपने मतलब मन में जो सांप होता है वो डर भी जाता है इस बात को लेकर के। सो that is enough for today, as you all have listened the half story of the Rikki Tikki who was a mongoose, was very courageous and was very curious, and one day he saw the sound of the sorrowful he listened the sorrowful sounds of the Darji, the tailor bird, so he asked the reason, and he came to know that the reason was a snake. Snake had eaten up the baby of Darji, so he knew that the snake is very bad and very wicked, so he want to take revenge from the snake. So he met a snake, and then he thought about the snake, that what he will do with him. So rest chapter I will continue on the next day. So today you all will read this chapter, and if you have any confusion then ask in comment box. Okay, that is clear to all of you. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.